وہ نے کہا کہ اگلی صبح ہی ڈیوٹی پر گیا اور ایک ضروری مشن کامیابی سے سر انجام دے کر وہ آج 2 ماہ بعد گھر لوٹا تھا۔ تیمور نے ڈیوٹی پر ہونے کے باوجود ماں کو کئی ساری فون کالز کی تھیں، مگر ثریا بیگم نے اس سے ایک مرتبہ بھی بات نہیں کی تھی۔ ابھی بھی رات کے 11 بجے وہ فل یونیفارم میں گھر لوٹا تو سیدھا انہیں کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، سائڈ ٹیبل پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا، خود ایک تصویر سینے سے لگائے روتی ہوئی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تیمور نے آ کر انہیں اپنے حصار میں لیا، وہ کچھ نہ بولی۔ تیمور نے ان کے ہاتھ سے وہ تصویر لی جو اس کے بابا کی تھی۔ آپ اب تک ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے آ کر ان کا ماتھا چوما۔ ثریا بیگم نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ شہید ولید افندی، یہ کہتے تیمور کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، بہت خاص۔ ماں نے بوجھل نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس تصویر میں بابا کی آنکھوں میں کتنی چمک ہے نا امی، جیسے یہاں وہ جانتی ہوں کہ انہیں کیا رتبہ، کیا مقام حاصل ہونے والا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عزم تھا، محبت اور عقیدت۔ تب ثریا بیگم خود سے ضبط کھوتے بیٹے کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ہمارے ساتھ تیمور؟ تمہیں ہم پر ترس نہیں آتا؟ کتنی حسرت ہے مجھے تمہارے بچے اپنی گود میں کھلاؤں، تمہاری خوشیاں دیکھوں، لیکن تم نے خود پر اور اپنے خاندان پر خوشیوں کا ہر دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کر رکھا ہے۔ تم کیوں ہو اتنے ظالم؟ وہ سسک رہی تھی۔ تیمور نے اپنے لب بھینچے۔ بس کریں امی، آپ ایک شہید کی بہو، دوسرے شہید کی بیوی ہیں، آپ جانتی ہیں انہیں مرا ہوا کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ ایک سپاہی کی ماں ہیں، یوں رو کر ان کی قربانی کو ہلکا مت کریں۔ میں آپ سے 1000 بار کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، پہلے دادا شہید ہوئے تو عمر بھر دادی کو ان کے غم میں گھلتے دیکھا، پھر بابا شہید ہوئے تو آپ کو، پھوپھا شہید ہوئے تو پھوپھوں نے خود پر خوشیاں حرام کر لیں۔ ایک حادثے میں چچا جیسے نڈر اور دلیر سپاہی نے اپنی دونوں ٹانگیں کھو دیں تو چچی نے اپنی ساری جوانی ان کی خدمت میں گزار دی۔ میں جانتا ہوں دادی کے ایک تو کیا 10 بیٹے اور ہوتے تو وہ انہیں بھی اس قوم کی سربلندی اور سلامتی کی خاطر قربان کرنے میں عار محسوس نہ کرتی۔ میں جانتا ہوں یہ جذبہ آپ میں بھی موجود ہے، اس خاندان کی ہر عظیم عورت میں موجود ہے، اس قوم کے ہر بیٹے کی طرح۔ تو کیا جو شہادت کا جذبہ میرے باپ، دادا اور پورے خاندان میں موجود تھا وہ مجھ میں نہیں ہوگا؟ یہ سچ ہے کہ ہمیں ہمارا خاندان بھی تحاشا عزیز ہے، مگر اس مٹی کا قرض سب سے پہلے ہے ماں۔ وہ انہیں آہستہ آہستہ اپنی مجبوری بتا رہا تھا۔ سانس لینے کو پل بھر کو رکا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں ماں، آپ کا وہ بہادر، نڈر اور جاں باز بیٹا جو بڑے بڑے سرماؤں سے نہیں ڈرتا، صرف اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرے بعد کوئی معصوم لڑکی ساری عمر میرے نام کی بیوگی کی چادر اوڑھ کر اپنی پوری زندگی برباد نہ کر لے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگوں سے محبت نہیں؟ اس گھر کے ہر فرد سے محبت ہے مجھے۔ میری وجہ سے عمر بھر کے لیے کسی کے لبوں کی ہنسی چھن جائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں میرا خواب مجھے میرے بابا جیسی عزت و تکریم حاصل ہو۔ میری پہلی محبت میری دھرتی ماں ہے، میرا ارمان، میری خواہش ہر مومن مرد کی طرح شہادت کے رتبے پر فائز ہونا ہے۔ وہ بہت معصوم ہے اور کم عمر ہے ماں، میرے بعد اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کے لہجے میں بے تحاشا بے بسی تھی۔ اور تمہیں نعوذ باللہ یہ پتہ ہے کہ یہ سب کب اور کس وقت ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس جذبے کو سلام، یہ نیت سر آنکھوں پر، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ دنیا داری نبھانے کا بھی تو حکم دیا ہے۔ کیا جاں باز سپاہی اپنے گھر نہیں بساتے؟ کیا سپاہی اپنے وارث پیدا نہیں کرتے؟ وہ غضبناک لہجے میں بولی تھی تو وہ لب بھینچ گیا۔ سب باتیں سچ تھیں اور دادی، ماں اور پھوپھی کو اجڑی بکھری حالت میں دیکھ دیکھ کر یہ خوف اپنی جگہ۔ اچھا ساری باتیں ٹھیک، یہ ناراضگی تو ختم کرے نا۔ اس نے زبردستی ماں کے گرد حصار کھینچا۔ تم نے بچی کا بہت دل دکھایا اور میرا بھی۔ وہ اپنے آنسوؤں پوچھتے پھر سے آبدیدہ ہوئی۔ جانتا ہوں، میں دعویٰ کر دوں گا، اس نے آہستگی سے کہا، تمہاری بیوی اس دن کی تمہاری باتوں کے سیاق و سباق سے یہ سمجھی کہ شاید تم کسی دوسری لڑکی کے عشق میں پاگل ہو رہے ہو۔ ثریا بیگم نے اسے بری طرح گھورا۔ یہ بھی جانتا ہوں۔ تیمور نے اپنا کان کھجایا۔ ماں نے اس کا کان پکڑ کر مروڑ ڈالا۔ وہ ہنسے گیا۔ اب نہ لو سے تیمور، تمہارے سارے دھڑکے، سارے خدشے بے جا اور غیر حقیقی ہیں، ماں نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا تھا، لیکن وہ ایک سر سی سانس اپنے اندر کھینچ گیا۔ یہ ممکن نہیں ماں، اس وقت تو بالکل نہیں۔ حالات بہت کشیدہ ہیں، ملک بہت بڑی خطرے سے دوچار ہے، دہشت گردی کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی ہے جس سے نمٹنا ہے ہمیں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا ماں۔ وہ کہتا وہاں رکا نہیں تھا، وہاں سے نکل آیا تھا۔
जबकि सुरैया बेगम खुदा के हजूर अपने लिए मज़ीद सब्र और इस्तकामत मांगती रही थी। तैमूर को अपने अंदर घुटन सी महसूस हुई तो कपड़े बदल कर लान में चला आया, मगर उसे नहीं मालूम था वो शैतानों का टोला आधी रात को किचन में घुसा नूडल्स बना रहा है कि दफातन माहिरविश की निगाह खिड़की के बाहर एक लंबे चौड़े साए पर पड़ी तो वह जल्दी से चौकन्ना हो गई। अब शोर मचाती तो वो चोर चौकन्ना हो जाता, लिहाजा दबे कदमों वो बाहर से चादर लिए लॉन में निकली। खिड़की से बाहर आते उसने अपनी पलटून को इशारा किया। वो सब बेतहाशा डर गए, मगर दांत कचकचाते किचन से चोर को मारने का सामान लिए उसके पीछे लपके। ये पागल सरफिरी लड़की एक दिन खुद भी मरेगी, उनको भी मरवाएगी। चोर मारो! माहिरविश ने उस पर चादर डाली और सब मिलकर इस नादीदा चोर को कूटने लगे, लेकिन सेकंड्स में तैमूर ने चादर हटाते उन्हें खुद से दूर झटका। तैमूर भाई! मुकाबिल शख्स को देख रोशनी के मुंह से फंस फंस कर निकला। आज तुम लोगों की हड्डियों को नमक दूंगा मैं। वो धाड़ा था। सबको अपनी जान प्यारी थी, लिहाजा सब सर पर पैर रख कर अंदर भागे थे। अगर कोई इस शेर के शिकंजे में फंसी थी तो वो हरनी, जिसकी कलाई अपनी आईने गिरफ्त में लेकर पीछे उसकी कमर को लगाता वो उसे अपनी जानिब खींच गया। किसी गुड़िया की तरह उसकी कसरते आईने सीने से टकराई थी। फिर एक अजीब व गरीब मामला हुआ। तैमूर, जिसने ये फेल इंतहाई नादास्तगी में अंजाम दिया था, इस नाजुक और मुलायम से पारिस को छूते उसके पूरे जिस्म में एक स्पार्क सा हुआ था कि वो अंदर से हिलकर रह गया। वो इस वक्त पिंक लॉन्ग ढीली ढाली टी शर्ट में हमरंग ट्राउज़र पहने हुए थी। सियाह लंबे बाल जोड़ी की शक्ल में बंधे हुए थे, जो इस खींचातानी में बिखर कर नाजुक कमर को छुपा गए थे। वो निकाह के दिन की तरह उसे दास्तां निगाह फेर लेना चाहता था, मगर ऐसा नहीं कर पा रहा था। तुम्हें मैं चोर नजर आता हूँ? जाने क्या हुआ, वो चाह कर भी अपना लहजा पहले जैसा खूनख्वार नहीं रख पाया था। नहीं तैमूर भा। इससे पहले वो कोई गज़ब करती, तैमूर ने अपना दूसरा हाथ पूरे हक से उसके गुलाबी लबों पर जमाया था। चुप! होश में नहीं हो या याददाश्त चली गई है? वो गुर्राया। उसकी बेपरवाही पर जाने क्यों तैमूर को बेहद गुस्सा आया था। वो अब भी उसे भाई कहने वाली थी। नहीं, मुझे तो सब याद है। ये भी कि आप तैमूर से ऑर्डर किए गए सीरियल और खरगोश। तैमूर, मेरा मतलब है तैमूर है। वो तोते की तरह फर फर बोल कर उसे अपनी याददाश्त की सलामती का पुख्ता सबूत देने लगी। मुझे चेक करने दो, यहाँ कुछ है या खाली है। वो बात को खामखा तोल देने लगा, क्योंकि वो बुरी तरह मज़ाहमत करती उससे अपना आप छुड़ा रही थी। तैमूर ने अपनी शहादत की उंगली अंगूठी में फंसा कर उसके माथे पर बजाई। आवाज़ तो खाली लग रहा है। तैमूर ने संजीदगी से इंतहाई गैर संजीदा बात की थी। छोड़े मुझे आपसे कोई बात नहीं करी। माहिरविश को तब चढ़ी। वो इस जिन और उससे मुतालिक एक नाजुक और हसास रिश्ते के बारे में तो सिरे से भूल ही गई थी। अब भी खामखा उसके मुंह लगने का उसे कोई शौक नहीं था। तैमूर ने जानबूझ के करीब ढीली की तो वो एक झटके से उससे अपना आप छुड़ाकर अंदर की तरफ भाग गई। ये बात तैमूर वलीद अफंदी को बुरी तरह चुभी थी। बहुत अजीब व गरीब कैफियत थी। वो हैरत ज़दा सा उसी एक लम्हे की गिरफ्त में जकड़ा काफ़ी देर वहीं तक खड़ा रहा। वो उस नाजुक जान की जानिब हरगिज़ मुतवज्जा नहीं होना चाहता था, मगर भला हो इस महरम और पाकीज़गी भरे रिश्ते का, उस मलकियत भरे एहसास का जो सीने में अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ था। क्या फ़र्क था आखिर कि वो निकाह वाले दिन उसके सजे सवरे क़यामत ख़ेज़ हुस्न से निगाहें चुरा गया था, और आज उस सादगी में भी वो बड़े हक से उसे गहरी निगाहों के हसार में कैद कर गया था। सच में निकाह के दो बोल में इतनी ताकत होती है कि ये इनकलाब आया था। ला हौला वला कुव्वता। उसे झरझरी सी आई, तब सर झटकर अंदर चला गया। ये आप लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? सदमे से माहिरविश की आवाज़ फट गई। घर में तकरीबन सभी का पैक हुआ सामान लाउंज में पड़ा था और गाड़ियों का इंतज़ार हो रहा था। लाहौर, दादी की बहन की पोते की शादी में हम वहाँ जा रहे हैं। सबीन फूफू की जेठ के बेटे की शादी है, वो वहाँ जा रही हैं, और चचा चची तुम्हारे मामू की तरफ। निमरा ने लहरा कर कहा। और मैं? सदमे से बुरी हालत थी। खैर से तैमूर घर पर है, दिन में ड्यूटी पर जाएगा, रात को इधर ही होगा, तो तुम अपने शोहर की खिदमत गुजारी को इधर ही रुकोगी। आखिर को अमामा बनने का इतना सुनहरी मौका फ़राहम कर रहे हैं तुम्हें।
दादी का तंज में डूबा तीर ठा करके उसके सीने में लगा। इमामा बनने के लिए सामने वाला भी तो सलार सिकंदर हो। आपका मुच्छर पोता मुझे अपनी मूंछों से लिपट कर ही फांसी दे देगा। जले दिल के फफोले फोड़ने को उसने मुबालगा आराई की हद कर दी। हालांकि तैमूर की घनी मूछें उसकी खूबसूरत और दिलकश चेहरे पर उसकी वजाहत को चार चांद लगा देती थी। उसकी बात पर उसकी माँ ने उसे एक धमोका झड़ा। उसकी वावेले और नाराज़गी के बावजूद वो सब उसे तन्हा यहाँ छोड़कर जा चुके थे। उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। ये सब उसकी लाडली दादी, ताई, सबीन फुप्पो और उसकी माँ की मिली भगत का नतीजा है कि वो उसे उसके शौहर के साथ तन्हा छोड़ जाएं ताकि वो एक दूसरे के करीब आते, एक दूसरे को समझ पाएं। माँ ने उसे फ़ोन पर सारी सूरत हाल बता दी थी। उनकी चालाकी पर गहरी सांस लेकर रह गया। वो जानता था ये चालाक ख़वातीन आखिर चाहती क्या थी। इस सब के बावजूद वो जल्द घर वापस आ गया था, सिर्फ ये सोच कर के वो जो कभी यूँ अकेले घर पर नहीं रही है, कहीं तनहा खौफ सता ना हो। जब वो घर में दाखिल हुआ तो मगरिब के बाद का वक़्त था। किचन से खटर खटर की आवाज़ आ रही थी। उसकी आहट पर मायरविश को भी पता चल गया कि वो घर आ चुका है। तभी उसने सुख का सांस लिया, नहीं तो तनहा उसे पूरा घर काट खाने को दौड़ रहा था। वो सब्जी लिए लाउंज में चली आई। तैमूर को भूख महसूस हो रही थी। आज खाने के नाम पर पता नहीं क्या शाहकार खाने को मिलेगा। हल्की फुल्की भूख का इलाज ढूंढने वो किचन में आया और अपने लिए कॉफ़ी बनाई। वो कॉफ़ी पीते किचन से बाहर निकल रहा था जब कॉफ़ी फव्वारे की शक्ल में उसके मुंह से बाहर निकली। उसे पूरी तरह अछू लगा था। अपनी जान नज़र करो, अपनी जान नज़र करो, अपनी वफा पेश करो, कौम के मर्द मुजाहिद तुम्हें क्या पेश करो। वो लहक लहक कर गाती मटर छील रही थी। फर्श या सोफे पर बैठने की बजाय शीशे के टेबल को तख्ते सुलेमानी समझे बैठी अपने सामने टोकरी रखे हुए थी। वो तनफन करता अंदर आया तो उस कौम के मर्द मुजाहिद को अपने सामने पाकर खजल सी हुई। मोहतरमा जो मर्जी पेश कर देना, मगर वो ऐसा हो जिसे कौम का मर्द मुजाहिद खाना ज़रूर कह सके। धीमी आंच पर हुई करारी सी बेइज्जती पर उसका गुलाबी चेहरा सुर्ख पड़ गया। देखिए आप, उसने छुरी उठाकर सामने लहराई, मगर एकदम ठटक गई। उसके साथ तैमूर भी ठटक गया। उसके हाथ में एक ताज़ा ताज़ा मोटा सब्ज़ कीड़ा रिंग था, उसके बाजू की जानिब बढ़ रहा था। महरविश ने कीड़े को देखा। कीड़े ने माहिरविश को जैसे कह रहा हो, बाजी मैं अभी तुम्हें साबित निकल जाऊंगा। आह! एक दिल खराश चीख थी जो माहिरविश के लबों से निकली। यकीनन कीड़े के भी कान फाड़ गई थी कि वो बदक कर ज़मीन पर छलांग लगाता खुदकशी का चुका था। तैमूर गड़बड़ा कर आगे बढ़ा। वो बेवकूफ़ टेबल पर उछलकर पीछे हटी, नीचे गिरने को थी। तैमूर उसे संभाल नहीं सका और वह धड़ाम से ज़मीन बोस हुई। शिट! तैमूर आगे बढ़ा और उस चीखती चिंगारती गुड़िया को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। शट अप महरविश! वो उसके बहुत करीब गुर्राया तो महरविश एकदम होश में आई। कहीं चोट तो नहीं लगी? उसके भीगी पलकें देख वो खुद ब खुद ढीला पड़ गया। छोटी उंगली पर छुरी लगी है। वो ससक पड़ी और पाँव की तरफ इशारा किया, जहाँ से अब अच्छा खासा खून बह रहा था। वो लब भींचे उसे अपने कमरे में लाया, जबकि इधर अब जो शऊर की सीढ़ी पर कदम रखा तो अपनी सिचुएशन और उस शख्स की इस कदर नज़दीकी पर वो दम साध गई। तैमूर ने लाकर उसे बेड पर उतारा और फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। मायरविश जो अब कभी मरकर भी उस कमरे में ना आने का आज़म किए बैठी थी, अपनी बेबसी पर आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गुलाबी गालों पर बह निकले थे। एक मामूली कीड़े ने क्या ही बिगाड़ लेना था तुम्हारा, जो इतना हंगामा मचा दिया। जाने क्यों वो आंसू फिसलते उसे अपने दिल पर चुभते से महसूस हुए, तो वो बेसाख्तगी में कह बैठा, अगर इतनी बुरी लगती हूँ तो क्या ज़रूरत है मेरी मदद करने की, अकेला छोड़ दे मुझे। वो चटक पड़ी और रूखे लहजे में कहते उसकी ग्रिप से अपना पाँव छुड़ाने लगी, जो उसकी जुर्रत और हिम्मत पर शशदर सा था। वो लड़की जिसकी पहले उसके सामने मनमनाहट भी नहीं निकलती थी, अब शेरनी बनी दांत कचकचा रही थी। बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में, जो यूं ज़बान चला रही हो मेरे सामने। वो उसकी उंगली की ड्रेसिंग कर चुका तो संजीदगी से फर्स्ट एड का सामान समेटने लगा। अब मैं नहीं डरती आपसे, वो तड़ा कर कहती तैमूर को एक आईब्रो उचकाने पर मजबूर कर गई। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया है? जाने क्यों महरविश को लगा उस जालिम की दिलकश गहरी और पुरस्कार आंखें मुस्कुराई हों। वो लाजवाब हो गए। अचानक तैमूर आगे बढ़ा और एक घुटना बेड पर फोल्ड किए उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके
उसे अपने बेतहाशा करीब किया, यूं कि तैमूर की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुई। तो महविश ने अपनी पूरी ताकत से अपनी आंखें और मुट्ठियां बंद कर ली। तुम कुछ कह रही थी। बहुत करीब उसकी महकती सांसों की खुशबू महविश की आवाज़ छीन गई। इधर तैमूर अपनी बदलती कैफियत पर पूरी तरह परेशान हुआ था। मतलब वो चालाक ख़वातीन अपने इरादों में कामयाब हो रही थी, वो उसकी जानिब मुतवज्जह हो रहा था। जवान जज्बात का कहर दिलो जान में तग़यानी से बर्पा कर गया। ये तन्हाई, खामोशी, बाहों में महर में जिस्म जान की मौजूदगी, नफ्स का घोड़ा सर पर दौड़ता अपने खूबसूरत जज्बों की तकमील चाहता था। वो इस पर नरमी से अकीदत से किसी मेहरबान बादल की तरह बरस पड़ा। वो उसकी खुशबुएं लौटाते सरापे में गुम होना चाहता था, लेकिन वो उसके जारहाना हिसार में फड़फड़ा कर रह गई। तैमूर प्लीज़। थूकने की माने जल्दी सांसों को संभालती वो उससे दूर हुई और कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वो खुद पर हैरान वहाँ मौजूद अपना सर थाम गया। वो इस वक्त किचन में मौजूद थी। दिलो दिमाग की जोलें हिल जाने के बावजूद पौने घंटे की सरतोड़ कोशिश के बाद उसने मटर छोड़ छाड़ बिरयानी बना ली थी। उसे कुकिंग का शौक़ था, लिहाजा हर चीज़ अच्छे से बनानी आती थी। ये अचानक क्या हुआ था? ये तन्हाई में उस शख्स ने कैसा वार किया था कि वो संभल नहीं पा रही थी? क्या इस तन्हाई की वजह से सिर्फ अपनी तलब पूरी करने को उसने ये पेशकदमी की थी? नहीं तो उसके दिलो दिमाग में तो कोई और ही बसा था। बदगुमानी अपने अरूज पर उसका दिल चलने की दे रही थी। उसका शिद्दत भरा भरपूर लम्स अभी तक उसके बदन को महका रहा था और पूरी तरह झटपटा रही थी। दिल के कंवारे कवाड़ वो इस हर शय के लिए तो हरगिज़ नहीं खोलना चाहती थी, जो पूरी तरह उसका था ही नहीं। लेकिन उस सरपट उसकी जानिब बढ़ता उसकी तवज्जो के धागे पूरी तरह अपनी जानिब खींच गया। जिस वक्त वो किचन में दाखिल हुआ, वो टेबल लगा रही थी। तैमूर ने उसे गहरी निगाहों से देखा, जो खुद से भी नाराज़ सी लग रही थी। वो टेबल पर बैठा और खाना खाने लगा। बिरयानी बहुत ही लजीज थी, लेकिन अपनी फुलझड़ी की इतनी खामोशी नाकाबिले हज़म। तुम्हारी बिरयानी में दम नहीं है। सच कहते हैं, सिगरेट और बीवी को जब तक तेली न लगाएं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बहुत बढ़िया। तो क्या आपकी कोई होती सोती की बिरयानी खुद ब खुद आलू और लेग पीस पैदा करती रहती है? वो तलमला उठी। तैमूर ने प्लेट पर झुककर बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की, मगर महविश का खून खोल रहा था। आपने वो सब क्यों किया? मेरे करीब क्यों आए? वो ज़्यादा देर जब्त नहीं कर पाई और फट पड़ी। खुद ही तो कह रही थी, कौम के मर्द मुजाहिद तो मैं क्या पेश करूं? मैं उसे तुम्हारी जानिब से ग्रीन सिग्नल समझा। उसने इंतहाई मासूमियत और संजीदगी का मुजाहरा किया था। क्या मतलब है आपकी बात का? वो नासमझी से पूछ बैठी, मगर ये पूछना उसके 14 तब रोशन कर गया। मुझे लगा तुम मुझे कोई पेशकदमी करने को कह रही थी। उसका इत्मीनान अब भी काबिल दीद था। आप पागल हो चुके हैं। आइंदा मेरे साथ कोई फजूल हरकत की तो मैं ताई अम्मी को शिकायत लगा दूंगी। वो भड़क उठी और किचन से निकल गई, जबकि वो अपना माथा मसलते मुस्कुरा दिया। अब उसे क्या पता था, ये उसकी ताई अम्मी की ख्वाहिश थी कि वो अपने ढेर सारे पोते पोतियों की ख्वाहिश लिए बैठी हैं। बहुत आहिस्तगी से वो उसके दिल के बंद कुआड़ों को खोल दी, उसकी रगों में सरायत कर गई थी। वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था, मगर ऐसा हो चुका था। उसे लगा था वो उसकी जानिब बिल्कुल मुतवज्जह नहीं हो सकता, मगर वो मासूम अपनी ऊट पटांग हरकतों से पूरी तरह उसे अपनी जानिब मुतवज्जह कर गई थी। वो जितना उससे दूर भागने की कोशिश करता, वो उतना ही उसको कच्चे धागे से बांध कर अपनी जानिब खींच लेती। और फिर ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। जब उसकी पोस्टिंग चंद महीनों के लिए पेशावर हुई, तो माँ ने उस नाजुक वजूद को भी उसके साथ रवाना कर दिया। यहाँ आकर वो जानता था वो उसके साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पा रही। सारा दिन क्वार्टर में बुलाई बुलाई फिरती थी, मगर वो उसकी परेशानी का कोई हल नहीं निकाल पा रहा था। उसके अलावा तैमूर ने नोट किया वो उससे बहुत बुरी तरह बदगुमान है कि वो जब भी उसकी जानिब कोई पेशकदमी करता, वो उतने ही अपने कदम पीछे हटा लेती थी। वो अब तक नदी के दो किनारे थे, साथ साथ, मगर एक दूसरे से दूर। वो उसे अलग कमरे में सोती थी। तैमूर ने खुद को उस पर मुसलत करना ज़रूरी नहीं समझा और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, मगर कब तक? वो घर में अकेली थी, वो ड्यूटी पर था। ये अच्छा मौका था उसके दिल के गहरे राज जानने का, जो उसको रातों को सोने नहीं देते थे। वो जानती थी वो उसके लिए तड़प रहा है, उसकी जानिब पेशकदमी करता है, मगर उसे अपने हमसफ़र का खाली वजूद नहीं चाहिए था।
वो मोहब्बत के बगैर खाली जज्बों को अपना आप सौंप कर खुद को बेमोल नहीं करना चाहती थी। उसके दिल में आखिर क्या छुपा है, उसे जान लेने की ख्वाहिश माहिर को उसके कमरे तक खींच लाई। पूरा कमरा छानने के बाद वो मुख्तलिफ तरीके आजमा चुकी थी, मगर लकड़ी की दराज का अलमारी खोल कर न दी। आखिर सर के पिन्ने घुमा घुमा कर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई और अलमारी खुल गई, मगर बाहर से आती मखसूस आहट उसकी आंखों के सामने हफ्ते आसमान घुमा गई। वो फौरन अलमारी में घुसी और दरवाजे लगा लिए। तैमूर कमरे में दाखिल हुआ। उसे फाती निगाह में भांप किया। यहाँ क्या वारदात हुई है? वो शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराया। किचन में बेतहाशा मुश्किल से ढूंढ ढूंढ कर एक कोहर नायाब लाया और कमरे में लाकर अलमारी में छोड़ दिया। रेंगता हुआ काकरोच माहिर को सलामी पेश कर गया। 1 2 3 वो मज़े से खड़ा गिन रहा था जब आधे 3 पर ही वो चीखती चिल्लाती उसके बाहों में आ रही। माहिर थर थर कांपती उसके सीने में घुसी हुई थी, जबकि वो एक दिलकश सा कहका लगाकर हंस पड़ा। माहिर का तो दिमाग घूम गया। उससे अलग होने की कोशिश की जो उसने नाकाम बना दी। उसके सीने पर मुक्कों की बरसात की, जिसकी ज़रबें उसे फूलों सी लगी। क्या ढूंढ रही थी यहाँ? उसे अपने कान के करीब मध्यम से खुमार आलूद सरगोशी सुनाई दी। कुछ नहीं, वो बामुश्किल बोल पाई। लेकिन मुझे पता है, मेरी नादीदा महबूबा की बाकियात ढूंढी जा रही हैं जो मैंने यहाँ दफन की है ना? उसने नरमी से पूछकर माहिर के सीने में उसकी सांस उलझाई। लेकिन आज मैं आपको अपने हर अमल से बताना चाहता हूँ बेगम, कि मुझे इस हवाले से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है। तैमूर ने जज्बों की शिद्दत से महकते अल्फाज उसके कान में अंडीले और उसे खुद के बहुत करीब कर लिया, यूं कि उसकी गुर्बत में वो संदल होती महकती चली गई। वो उसकी तमाम गलत फहमियाँ, तमाम बदगुमानियाँ अपने मसीहाई भरे अल्फाज से ख़त्म करता चला गया। खैर वक्त पर लगा कर रुड़ गया और अगले साल ही महरविश की गोद में अपने बाबा जैसी एक नन्ही महरविश रहमत की सूरत में आई और उनका खुशियों से भरा ख़ानदान पूरी तरह मुकम्मल कर गई। सुरैया बेगम के पैर ज़मीन पर ना टिकते थे। हर कोई इस नन्ही सी महरविश में मगन हो गया। अब भी महरविश इस नन्ही सी जान में उलझी हुई थी। जब पीछे से आकर तैमूर ने उसके गिर्द अपने बाजू हमाइल किए तो वो पूरे पूरे मुंह बनाने लगी। वैसे बेगम, आपने नोट किया मैंने कभी आपको सो स्वीट क्यों नहीं कहा? तैमूर ने उसे छेड़ते उसके मुंह बनाने पर चोट की। बहुत मेहरबानी, मैं कोड़ी और तीखी ही ठीक हूँ। वो उसकी बेवक्त की मोहब्बत की रागनी पर चंचला कर बोली तो वह कहका लगा कर हंस पड़ा तो वो भी हंस दी। जिंदगी उसकी संगत में इतनी खूबसूरत हो जाएगी उसने कभी सोचा न था।